let us discuss the residential status of an individual. So, a residential status of an individual. So just to determine the residential status of an individual, as in the previous lecture we discussed that there are three types of the residential status of an individual. One is resident but ordinary resident, another is resident but not ordinary resident, and third one is that is a non-resident. So how we can determine the residential status of an individual? There are certain conditions, and we discussed that there is a territorial connection, that is the territorial connection in India. So let us discuss first of all, and then after that I would conclude regarding the residential status of an individual. So first of all, you have to raise one question. Okay, I would write it in the red. Does the individual stay in India for 182 days or more during the previous year? This is the first question. If the answer is yes, then we have to move further two conditions, which are known here as the additional condition. So this is also the basic condition, this is also an additional condition. So if this is yes, then we have to raise another question, and that question is, does individual satisfy both the following conditions? Both the following conditions. And what is that condition? That is, he is resident in India in any 2 years to previous years. 2 previous years out of 10 previous years preceding the relevant previous year. And other one is, let us take it as a and let us take it as a B plus, that is his stay in India for 730 days or more during the 7 previous years preceding the relevant previous year. Right? Suppose if he satisfies this condition as well as these two conditions, what does it mean? Okay, red means here I can call it as a basic condition. ठीक है जी.
and these two are to be called here as additional conditions. Additional conditions, right? Additional conditions. If here, now if the answer is yes, then the residential status would be of resident and ordinarily resident. Means ROR. एंड जिसका मैंने निक नेम आपको क्या बताया था? रेजिडेंट का। ठीक है जी, निक नेम रेजिडेंट। तो यहां से चले हम, यहां यस मिला, यहां यस मिला, तो ये दोनों से कंडीशन से यस मिला, तो यहां पे हम रेजिडेंट बन गए। बिल्कुल, इसको फिर मैं नरेट करता हूं। अच्छा, अब आपके पास क्या हो सकता है? अब हो सकता है कि आपके पास यहां पे आ जाए नो। एक तो यस था, तो दूसरा आ गया आपके पास नो। अगर नो है तो कोई परेशानी नहीं है। तो हम कहां चलेंगे? हम कंडीशंस पे चलेंगे। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हुई तो हम यहां चलेंगे। क्या बोलेगा वो? डज ही और शी स्टे इन इंडिया for 60 days or more during the relevant previous year. And है साथ में 365 days or more during 4 previous years immediately preceding the relevant previous year. ठीक है जी। तो अब क्या हुआ? अगर उसने ये कंडीशन पूरी नहीं है तो इसको भी मैं दोबारा से बोलूंगा बेसिक कंडीशन। तो दो मेरे पास एक तरह से एक सेट ये है, एक सेट ये है। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो हम नो आगे तो हम यहां आ जाएंगे। अगर यहां आ गए तो, और सपोज कीजिए कि ये यहां दोबारा से यस आ गया। अगर यस आ गया तो आप फिर सीधा यहां आ जाएंगे। जब यहां आ जाएंगे तो फिर दोबारा से हम क्या देखेंगे कि ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हैं या नहीं है। अगर फुलफिल है तो दोबारा से रेजिडेंशियल स्टेटस कहां आ गया? रेजिडेंट का आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है? और पॉसिबिलिटी हो सकती है नो की। ये जो बेसिक है ये आपने लिखना नहीं, ये मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं। ये एडिशनल भी बस कैसे मायने में रखना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं। अगर मान लीजिए कि यहां पे आ जाता है नो, कोई बात नहीं। अगर नो आ गया तो आपका जो रेजिडेंशियल स्टेटस होगा वो होगा नॉन रेजिडेंट का। नॉन रेजिडेंट का NR। ये तो सीधा ही है। यहां पे भी नो हो गई, यहां पे भी नो हो गई, और यहां पे भी अगर इन दोनों कंडीशंस में से भी अगर पूरी नहीं हुई तो हमारा नो हो गया, तो रेजिडेंशियल स्टेटस से क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट का हो गया। अच्छा, अब यहां पे क्या था? यस। तो यहां पे आपके पास क्या हो सकता है? नो। अगर नो हो गया तो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा? तो हमारा स्टेटस हो जाएगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, जिसको बोलते हैं रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसको हमने आपको जिसका शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहा था? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अच्छा जी, पहले तो हम बात समझ लेते हैं और फिर हम आपको उसका कंक्लूजन ड्रॉ करके देते हैं।
आपने क्या करना, पहली बेसिक कंडीशन में, फर्स्ट बेसिक कंडीशन, डज द इंडिविजुअल स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये क्या मतलब हुआ, ये बताता हूं आपको। देखिए, हमने जो पढ़ा है, मान लीजिए कि इस साल हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो 2021 हुआ, ठीक है जी, और उसका जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर हुआ वो 2019-20 हो गया जी। और इसके पीछे इनको बोलते हैं हम प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। यहां तो बात है जी। तो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कौन कौन से हो गए, 2018, 19, 2017, 18, 2016, 17, 15, 16, 14, 15, सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह से, ठीक है जी। तो पहली बेसिक कंडीशन आपने क्या देखनी है, डज द इंडिविजुअल स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर का मतलब ये हुआ कि उसका स्टे कितना होना चाहिए, 182 डेज। अच्छा, यहां पे आप ये बोलेंगे कि एक ही स्टे होना चाहिए, एक जैसा। अरे नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पे पता क्या है, ही इज इन इंडिया इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर फॉर ए पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन ऑल टू 182 डेज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि आप टुकड़ों में भी रह सकता है। एक दिन आया फिर फौरन चला गया, उसके बाद 2 दिन आया फिर चला गया। तो आपने 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में आपने ये देखना है कि उसका स्टे जो है 182 डेज है या नहीं है। दूसरी बात, जो उसका स्टे है वो जरूरी नहीं है, वो वॉलंटरी भी हो सकता है, वो अगेंस्ट हिज विल भी हो सकता है, ठीक है जी। और नॉट एट वन स्ट्रेच, जरूरी नहीं है कि 182 एक बार आया और 182 डेज कंप्लीट करके गए। तो ये आपने बातें जो है अपने ध्यान में रखनी, क्योंकि वहां पे वर्डिंग है पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन ऑल, ठीक है जी। यहां तक ये आपका बेसिक। अच्छा, अब हम यहां से यस करके आ गए, तो यहां आ गए थे। यहां पे क्या है, ही इज रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ द 10 प्रीवियस ईयर प्रोसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर्स। अब आपने क्या करना, अब आपने देखना आउट ऑफ द, ये आपका प्रीवियस ईयर, ये आपका असेसमेंट ईयर, ये रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से आपने पीछे कितने चले जाना, 10 साल। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन 10 सालों में, पिछले 10 सालों में वो 2 साल जो है, कम से कम 2 साल क्या होना चाहिए, 2 साल में वो रेजिडेंट होना चाहिए। अब रेजिडेंट का मतलब यहां क्या है, अगर आप सिंपल सी बात करें कि वो एक तरह से 2 सालों में 60 दिन के करीब जो है वो इंडिया में रहा होना चाहिए, वो सॉरी 182 डेज जो है वो इंडिया में रहा होना चाहिए, ठीक है जी। यहां पे तो देखो, एक कंडीशन ये हो गई, और साथ में 10 सालों में, पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल वो क्या होना चाहिए, रेजिडेंट। रेजिडेंट में चाहे ऑर्डिनरी है चाहे नॉट ऑर्डिनरी है। तो यहां आपने देखना कि वो 60 दिन, मिनिमम 60 दिन एक साल में रहा है कि नहीं रहा है। तो आपने सिर्फ 2 साल का देखना है, और साथ में आपने पिछले 7 साल में, ये तो 10 था, अब 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एंड 7, ठीक है जी। इस 7 सालों में टुकड़ों में क्या वो 730 दिन रहा। यहां तो 2 साल का रेजिडेंट ही देखना था आपने, यहां देखना है कि 730 दिन रहा वो कि नहीं रहा, कितने, 7 सालों। तो यानी कि ये प्रीवियस ईयर, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पीछे, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पीछे, उसके पिछले 7 सालों में उसका स्टे कितना होना चाहिए, 730 दिन का होना चाहिए। ये भी बात क्लियर होगी जी। ये तो क्या हुआ, अगर कोई पर्सन प्रीवियस ईयर में 182 डेज और 10 सालों में 2 साल रेजिडेंट और पिछले 7 सालों में कम से कम उसका 730 दिन या उससे ज्यादा का रेजिडेंट स्टेटस अगर उसका स्टे है इंडिया में, तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अच्छा, अब सपोज कीजिए कि ये कंडीशन पूरी नहीं है, तो हम कहां आ जाएंगे, यहां। तो अब हम क्या देखेंगे, यहां पे डज ही स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर। अब मान लीजिए कि यहां 182 डेज नहीं है, ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, तो आपने क्या करना, अब इसमें देखना कि प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन रहे, 60 दिन या उससे ज्यादा हो सकता है। और साथ में
पिछले 4 साल 1 2 इसको छोड़ करके पिछले 4 साल 1 2 3 4 ये 4 साल, इन 4 सालों में उसका स्टे होना चाहिए 365 डेज का, इन 4 सालों। तो आपने देखना कि गया आया कब गया, ये सारी बातें देख करके आपने उसकी कैलकुलेशन करनी है और देखना है कि 365 डेज है या नहीं है। क्लियर हो गया जी। तो अगर 182 वाली कंडीशन नहीं है तो 60 दिन वाली आ जाओ। 60 दिन के साथ दूसरी कंडीशन चिपकी हुई, ये इंडिविजुअल है, इसके साथ 2 है, तभी तो मैंने वर्ड क्या लिखा है एंड। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हैं तो आपने दोबारा से कहां आ जाना, यहां पे। तो फिर आपने देखना कि अच्छा 2 सालों में, पिछले 10 सालों में 2 साल रेजिडेंट है और पिछले 7 सालों में जो 730 दिन का स्टे है, तो रेजिडेंट स्टेटस क्या हो जाएगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब अगर मान लीजिए कि ये कंडीशन पूरी है लेकिन ये कंडीशन पूरी नहीं है, नो है, तो आपका क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट का स्टेटस हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये चीज क्लियर होगी कि ये 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पीछे की बात हम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अब मैं इसको टाइम आ गया कि इसको मैं अब एक रूल के फॉर्म में जो है वो आपको कंक्लूड करके बताऊं। ठीक है जी, ये देखो यहां से अब मैं इसका स्पेस लेकर के रूल बनाने की कोशिश करता हूं। तो रूल बना देता हूं और आपके दिमाग में कैसे ये मैंने डिटेल में अब कैसे होगा वो बता देता हूं। तो मैंने रूल्स किसके लिए, इफ इंडिविजुअल के लिए जी, इंडिविजुअल के लिए, ठीक है जी। इंडिविजुअल में इफ ही और शी सेटिस्फाइज क्या, तो जो मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा हिंट दिया था आपके लिए, वो ये एक कंडीशन थी बेसिक और एक हो गई एडिशनल। सेट हुए कीजिए, सेट है, बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन के सेट है आपके पास। ठीक है, अच्छा अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कौन सा, एक स्टेटस क्या था जी, रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर आइदर और बोथ, तभी अगर मान लो ये देखो, ये आपके सामने बेसिक कंडीशन, एक सेट बेसिक कंडीशन का ये है, एक सेट बेसिक कंडीशन का ये है। कहता या तो ये आइदर और बोथ, या ये या दोनों। अगर दोनों बेसिक कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, ठीक है जी, और साथ में बोथ द एडिशनल कंडीशन, एडिशनल कंडीशन कहां है, ये मैंने आपको बता दिया, बोथ द एडिशनल कंडीशंस आर फुलफिल्ड। क्लियर होगी जी बात। देखो तो मैं बताऊंगा आपको, यहां से चल रहा हूं, एक और ये 2, देखो जी इधर है 1 और 2, तो रेजिडेंशियल स्टेटस क्या बन गया, रेजिडेंट, क्योंकि ये तो शॉर्ट लिखा है ना मैंने। रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अच्छा फिर क्या है इधर, अब ये नहीं है मान लो, तो ये और फिर उसके साथ 2 और ये, तो भी क्या बन जाएगा, रेजिडेंट एंड और या दोनों और ये दोनों, तो भी रेजिडेंशियल स्टेटस क्या बन जाएगा। तो आपने क्या है, इन 2 में से सिर्फ एक देखना है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी है, 1 है। अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि इन 2 में से एक भी फुलफिल हो जाए, तो अगर मान लो ये फुलफिल हो जाए तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं, आप सीधे यहां चले जाओ और अपना टाइम बचा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो फिर आप यहां आ जाओ, क्योंकि 182 डे से कम 60 डेज और 60 के साथ 4 साल आपने देखने। और अगर ये कंडीशन पूरी होगी तो फिर आपने दोबारा से 2 इस पे आना है और आपका रेजिडेंशियल स्टेटस बन गया। ठीक हो गया जी पहला। अच्छा उसके बाद आता हूं नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। शॉर्ट नेम क्या है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसमें क्या करना है मैंने, इसमें भी इधर और बोथ। लो जी, अब अगर या तो ये कंडीशन पूरी है या ये कंडीशन पूरी है या दोनों कंडीशन पूरी है, ठीक है जी। अच्छा अब हो गया 1 और नन। अब इन 2 में से या तो एक कंडीशन है या कोई भी कंडीशन पूरी नहीं है, ये देखो नो, 1 और नन, तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब देखो यहां पे आपके सामने ही है। अब इसने क्या किया, ये दोनों कंडीशन पूरी, या तो ये कंडीशन पूरी की
देखो इस रूट से चलते हैं, ये कंडीशन पूरी की तो हम कहां चले गए, यहां चले गए। यहां में से क्या, यहां से क्या हुआ, अगर तो दोनों कंडीशन पूरी हो गई तो यस हो गया, अगर नो हो गई तो सीधा यहां आ गया। ठीक है, अच्छा अब आप इस रूट से आ जाओ, यहां से भी चले और यहां पहुंच गए। यहां पहुंचने के बाद फिर हमारे पास क्या आ गई, नो आ गई, नो आ गई तो रेजिडेंट। तो क्या बना दीजिए मैंने शॉर्ट में, आइदर और बोथ, इन दो में से एक कंडीशन, लेकिन इनमें से या तो एक भी या दोनों, कोई भी कंडीशन अगर पूरी नहीं है तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या बन गया, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और तीसरा मैंने आपको बताया था नॉन रेजिडेंट का। ठीक है जी, नॉन रेजिडेंट में लो जी नाइदर, तो ये क्या हो गया, नॉट रेलेवेंट, नॉट रेलेवेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो आप ये कंडीशन पूरी कर रहे हैं, ना ये वाली बेसिक कंडीशन पूरी कर रहे हैं, ना ये एक सेट बेसिक कंडीशन का पूरा कर रहे हैं। जब दोनों कंडीशन पूरी नहीं कर रहे हैं तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए एडिशनल कंडीशन को हमने देखना ही नहीं है। जब नहीं देखा तो इसका मतलब है कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट का हो गया। तो अब मुझे लगता है कि आपके पास तो आप क्या हो गया, तो एक फर्स्ट सेट आपके पास किस चीज का आया जी, बेसिक कंडीशन का। फर्स्ट स्टेप इज फॉर बेसिक कंडीशंस। ठीक है जी, और बेसिक कंडीशंस, और बेसिक कंडीशंस आपके पास क्या है, एक ये है, इसको मैं अब ए बोल देता हूं, इसको मैं बी बोल देता हूं। तो ए और बी, लेकिन बी में ये 1 और ये 2, तो ये ए और बी के साथ आ गई 1 एंड 2। लो जी, बेसिक कंडीशन का सेट हो गया। दूसरा सेट क्या आपका कौन सा आ गया जी, एडिशनल कंडीशंस। एडिशनल कंडीशंस, एडिशनल कंडीशन। अब जो एडिशनल कंडीशंस हैं उसमें भी मेरे पास कौन आ गए, ए एंड बी, ये दो कंडीशंस मेरे पास आ गई। अच्छा, अब हमारे पास यहां पे ये जो फर्स्ट बेसिक कंडीशन थी, ये वाली जो है फर्स्ट बेसिक कंडीशन, और ये वाली जो कंडीशन है, इसकी आपके पास एक्सेप्शंस हैं जहां पे ये लागू नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में आपको ये तंग करेगा। ये एक्सेप्शंस कौन है, वो है जब वो इंडियन सिटीजन है। ठीक है जी, और है इंडियन सिटीजन, लेकिन उसने इंडिया को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया उसने इंडिया को, और कहां चला गया, बाहर चला गया। कैसे चला गया, या तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए गया, जॉब के लिए गया, या मेंबर ऑफ क्रू गया, मेंबर ऑफ क्रू गया। ठीक है जी, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये वाली कंडीशन, कोई इंडिया से बाहर चला जाता है। ठीक है जी, एक ये, और एक एक्सेप्शन ये आ गई। और दूसरी एक्सेप्शन आपके पास क्या है, एक इंडियन सिटीजन है, वो भी इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब आप बोलेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है, मैं आपको बताता हूं, या तो उसका पर्सन, या उसके पेरेंट्स, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, जो अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिया है जिन्होंने, यानी कि 1947 से पहले। तो ये बांग्लादेश कब था, इंडिया में ही था। पाकिस्तान किसका पार्ट था, इंडिया का ही पार्ट था, इसलिए इंडियन ओरिजिन वहां के जो पर्सन है। और इंडियन सिटीजन, दूसरा मैंने आपको क्या बताया, दूसरा बताया इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्लियर होगी जी, इंडियन ओरिजिन का मतलब, इंडियन ओरिजिन 3 पीढ़ी तक लेना है आपने, अनडिवाइडेड इंडिया में। वो बाहर रहते हैं, जनरली वो बाहर रहते हैं, लेकिन कभी कभी इंडिया आते हैं, कभी कभी इंडिया आते हैं। तो जरा ध्यान रखना, इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और इंडियन ओरिजिन जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया में, या तो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके दादा, अनडिवाइडेड इंडिया में उनका जन्म होना चाहिए, तब उसको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर मान लीजिए अगर ये लोग हैं, तो आपने क्या करना, एक्सेप्शन में ये जो 60 दिन है ना, 60 दिन, ये 60 दिन इन दो केसेस के लिए 60 दिन को आपने रिप्लेस कर देना 182 डेज के साथ। तो अब बाकी कंडीशन आपकी सेम रही। तो किसके लिए, इसके लिए आपने
जो ये कंडीशंस हैं, उन कंडीशन में जहां 60 दिन है, सिर्फ वहां पे आपने रिप्लेस कर देना 182 डेज से, और बाकी एज इट इज रहेगा। अब आप इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को अप्लाई करिए और उसके बाद देखिए कि रिजल्ट क्या आते हैं। और मुझे लगता है कि अब ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया आपके लिए, सिंप्लीफाई हो गया। तो अब आप ये देखिए प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। तो आज हमने डिस्कस कर लिया रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली।